اور اب ہم ذرا بات کریں گے ملک کے معاشی حالات کی جو کہ بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آج ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جو 50 سال پہلے کرنی چاہیے تھی۔ اور یورو بانڈز کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں آنے والی نسلوں کا سوچنا چاہیے، صرف الیکشن سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کریں گے تو ملک آگے نہیں جا سکے گا۔ 10 سال ہم وہ کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں 50 سال پہلے کرنی چاہیے۔ پاکستان کی جو اکانومی تھی ایشیا میں چوتھے نمبر پر تھی۔ سارے جتنے بھی ایشین ٹائیگرز تھے یہ سب ہمارے سے بہت پیچھے تھے، کیونکہ ایک لمبی سوچ تھی، آگے جنریشنز کی سوچ تھی۔ جب تک آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں نہ، اگر آپ الیکشن ٹو الیکشن پلاننگ کریں گے کبھی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے جو وہ اپنے بچوں پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ آپ کے بچے کو ایک الیکشن کے اندر تو تیار نہیں ہوتے فیوچر کے لیے، آپ کو لمبی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اور وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی وہ ہر شعبے میں مسنگ تھی۔ جو 60s میں ایک پاکستانی میں کانفیڈنس تھا، ایک ہوپ تھا، وہ آہستہ آہستہ ہم نے نیچے زیادہ دیکھا۔ یہ جو 1985 کے بعد یہ ملک نیچے جانا شروع ہوا، ہندوستان بھی دیکھتے دیکھتے آگے نکل گیا ہمارے سے، تو ان پچھلے 30 سالوں میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا پاکستان سے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کوئی کسی قسم کی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں تھی۔ اور جو ہم نے بجلی بھی بنائی وہ بجلی بھی شارٹ ٹرم پلاننگ کے اندر بدنیتی کے اوپر بھی کئی دفعہ، جس کی وجہ سے آج ہماری سب سے برے صغیر میں مہنگی بجلی ہے۔ دوسری جانب وزیر خزانہ شوکت ترین یہ کہتے ہیں کہ گرین بانڈ عالمی سطح پر مقبول ہو رہا ہے۔ صرف رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں $107 بلین کے بانڈز کا اجرا کیا گیا۔ وزیر خزانہ کا مزید کہنا ہے کہ کامیابی وزیر اعظم کی پالیسیز پر عالمی برادری کے اعتماد کا مظہر ہے۔ Green bonds have been becoming popular globally as countries reorient their policies to join the race to zero emissions. Only in the first quarter of this year, the world issued $107 billion of such bonds. The success of this transaction was reflective of the confidence of the international community in the policies of the Prime Minister Imran Khan. And I think this is very evident. After the Eurobond, the Green Bond. The two projects, Bhasha and Muhammad, are critical to the country's future energy, water and food security needs. اور حکومتی دعوے اپنی جگہ، لیکن اپوزیشن معاشی صورتحال سے خوش نہیں ہے۔ اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ عوام بھوکے اور بے روزگار ہیں، حکمران سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے رہے ہیں۔ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق آوان نے کہا کہ اپوزیشن کا ملکی معیشت کی بہتری پر پروپیگنڈا سمجھ سے باہر ہے۔ اپوزیشن معیشت کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے مخالفین کو شہباز شریف سمیت اس وقت جو اصل درد ہے کہ جس معیشت کو ہم وینٹیلیٹر پہ پھینک کے گئے تو یہ کیا معجزہ ہو گیا، نہ صرف معیشت اپنی درست سمت پہ چل پڑی، معاشی اشاریے سارے جو ہیں وہ بہتری کی طرف رواں دواں ہیں، تو اس کو واپس ڈی ریل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کارستانی کی جائے۔ اور اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پر ماہر معاشیات خرم شہزاد، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ خرم، ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ گڈ مارننگ۔ خرم، یہ کہے گا کہ ملک میں معاشی صورتحال کو لے کر حکومت کافی زیادہ پر امید ہے، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ کافی زیادہ ناخوش ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں یہ کس سمجھ جا رہے ہیں؟ خرم، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جیسے حکومت اس وقت کافی زیادہ پازیٹیو ہے، پاکستان کی جو اکانومی جو فسکل سچویشن کو لے کے کافی زیادہ پر امید نظر آ رہے ہیں، لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ کافی زیادہ نالا نظر آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی حکومت وہ اقدامات نہیں کری جو کہ کرنے چاہیے۔ تو اس لیے ہم خرم سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ خرم، ہمیں خوش ہونا ہے، ہمیں پر امید ہونا ہے، یا ہمیں اپوزیشن کی طرح ہمیں پریشان ہونا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ ایک اینڈ تو ناخوش ہوتا ہے اور دوسرا اینڈ آف کورس خوش ہوتا ہے۔ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی خوش ہوتا ہے، جس کی حکومت نہیں ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ناخوش ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا فیکٹس ٹھیک ہیں یا نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی فیکٹس اپنی جگہ ہیں اور اکانومی میں بہت بہتری آ رہی ہے، مومنٹم بن رہا ہے، نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نمبرز میں نہ صرف یہ کہ جی ایکسٹرنل اکاؤنٹ یعنی کہ ہمارا ٹریڈ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، ریمیٹنسز بڑھی ہیں، بلکہ لوکلی جو ہے
वो कंजम्पशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई, और इस मरतबा ये अच्छी बात है कि करंट अकाउंट डेफिसिट की बजाय करंट अकाउंट सरप्लस के साथ हमारी जो है वो बेहतरी होना शुरू हुई है। ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए इसके दो साइड्स हैं। एक तो ये कि मोमेंटम शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में बेहतर हुआ है इकोनॉमी का, बट हम क्या लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अपनी जो पब्लिक फाइनेंसेस है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पब्लिक फाइनेंसेस, जिसमें रेवेन्यू कितना आ रहा है, कहाँ हमारा खर्च हो रहा है और कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हम कहाँ कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर रेवेन्यू आता है, टैक्सेस आते हैं, तो क्या उनका इस्तेमाल सही हो रहा है? अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये जरा ये जो लॉन्च हुआ है वजीर आजम साहब की जानिब से, ये जो इंडस यूरो बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स जिन्हें भी कहा जा रहा है, और $500 मिलियन 10 साल में रेज करने के लिए जिसका प्लान किया गया है, और उसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि काफी अच्छा रिस्पांस भी सामने आया है। यानी कि $500 मिलियन रेज करने थे और $3 अरब की, $3 बिलियन की अभी तक एश्योरेंसेस भी आ चुकी हैं। तो इसके हवाले से बताइएगा कि ये क्या सेटअप है, इससे क्या फायदा होगा? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, क्योंकि हम इन्वेस्टर मार्केट्स में गए हैं एज कंट्री काफी अरसे बाद, और ये जो बॉन्ड का इशू है ये हमने बहुत अरसे बाद किया है। मेरे ख्याल में 2-2.5 साल के बाद, 1.5 या 2 साल के बाद हम गए हैं, और इस हुकूमत का मेरे ख्याल में ये एक बड़ा जो है वो ये कहें कि फंड रेज है। हालांकि ये डेट ही है, पर अच्छी बात ये है कि आपको मार्केट की, इन्वेस्टर मार्केट को टच करना पड़ता है, जाना पड़ता है, उनके साथ इंगेज होना पड़ता है, फिर आपको कंटिन्यूस बेसिस पे जो है वो पैसा मिलता रहता है, और आप ये अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते रहते हैं, जो कि अच्छी बात है और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब मैं आता हूँ कॉस्ट पे, कि क्या ये डेट जो है, ये कर्ज जो है सस्ता था, महंगा था? देखिए आजकल के दौर में जब पेंडेमिक चल रहा है, आज भी पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट जीरो या ये कह लें कि इनफैक्ट नेगेटिव में भी है, और इस वक्त जो है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि डॉलर का फ्लो बहुत ज्यादा है दुनिया में, क्योंकि यूएस ने बहुत ज्यादा डॉलर मार्केट में डाले हैं ताकि उनकी इकोनॉमी और दुनिया की इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सके, खासकर उनकी अपनी इकोनॉमी को। तो इस सूरत हाल में मुझे ये लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है या मेरा पर्सनल एक व्यू है कि ये थोड़ा सा कम कॉस्ट पे हो सकता था। हमने, यानी कि ये जो इसकी परसेंटेज है वो 7.35%, आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है? देखिए 3 एरियाज में हम इस वक्त थोड़ा सा हमने जो है ज्यादा कॉस्ट इनकर की है। एक तो ये वाला बॉन्ड का, मुझे लगता है थोड़ा सा हायर साइड पे हमने जो है इसकी कॉस्ट की है, 7% है, 7.5% है। इसी तरह वापडा का जो बॉन्ड हुआ है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वो देखे ना, रिस्पॉन्स आए इसलिए ना कि बहुत लिक्विडिटी है। इसी तरह है कि मेरे पास अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है और आपके पास एक चीज है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो आप वो चीज की प्राइस बढ़ा देंगे। यहाँ पे उल्टा होता है कि उसके आप रेट कम कर देंगे क्योंकि आपके पास पैसा हर तरफ से आ रहा है। अच्छा, तो रिस्पांस लिक्विडिटी की वजह से खुरम इनका बहुत अच्छा आ रहा है। हम देख रहे हैं फॉरेन रेमिटेंस भी जो है उसमें रिकॉर्ड थोड़ा इजाफा हुआ है, स्टॉक मार्केट भी हमारी काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम है, जो टैक्स कलेक्शन के वाले से एफपीआर भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि जो टारगेट था उससे भी कहीं ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किए गए। इसके बावजूद अवाम ये कह रही है हमें फ़ायदा कब होगा, हमारे लिए महंगाई कब कम होगी? जी, ये आपने की ना बात बढ़िया। एक्चुअली बॉटम लाइन तो ये है कि सारी मैक्रोज जो है आपके नंबर्स तो आते हैं, आपके जो है वो मंथ ऑन मंथ भी ग्रोथ होती है, आपके कोविड की वजह से ग्रोथ कम हुई थी, उसके बाद फिर बढ़ गई। तो ये एक डिमांड जो है वो खुली है, तो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं। नंबर्स देखें, फिर हम ये कहते हैं कि नंबर्स में कोई दो राय नहीं है कि नंबर्स अच्छे हैं, इकॉनमी चल रही है, बट एक आम आदमी को रोजगार, महंगाई और उसकी जो तरीका है जिंदगी है, परचेजिंग पावर स्पेशली, वो किस तरह से चल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात ही यही है कि क्या उसके घर में रोज जो वो खाने को उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और किस प्राइस पे मिल रहा है। इस पे गवर्नमेंट को काम करना है। यही एक्चुअली रिफॉर्म्स का हिस्सा होगा, एनर्जी रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म्स, और ये जो कमोडिटी के रिफॉर्म्स है जिसमें आपकी प्राइसेस कम होती हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अभी ये प्लान कर रही है। अभी नए वजीर खजाना ने भी कहा है कि ये कुछ इस तरह के वेयर हाउसेज सेटअप कर रहे हैं जिसमें 4-5 बड़ी कमोडिटीज, जिसमें वीट है, चावल है, शुगर है और दूसरी कमोडिटीज हैं, इनको जो है वो स्टोर किया जाएगा और इनकी लिक्विडिटी के हिसाब से इनको मैनेज किया जाएगा, और इनकी जो है शॉर्टेज पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान दिया जाएगा। एक और चीज खुर्रम, ये भी बताइएगा कि ये जो नंबर्स हैं इसके हवाले से ऑपोजिशन खासा क्रिटिसाइज कर रही है कि जो दुनिया भर में इवन बड़ी इकोनॉमीज की जो सूरत हाल है, जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो ग्रोथ के नंबर शो किए जा रहे हैं उनको मैनिपुलेट किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा है कोई शुबा? देखिए मैं ये कहूँगा कि मैनिपुलेशन का वर्ड मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। ये कह सकते हैं कि इसमें ना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। ये अभी इस गवर्नमेंट के नहीं है, ये पिछले हम काफी अरसे से देखते आ रहे हैं कि डेटा कलेक्ट कैसे होता है, कैसे कंसेंसस करता है। देखिए मैं एक चीज बता दूं कि जीडीपी के नंबर्स और बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके नंबर्स
सर्वे बेस्ड होते हैं। कोई अगर ये कहता है कि जी मैं एग्जैक्ट नंबर निकाल के दे सकता हूँ, या ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं, या अपोजिशन कहती है, या फिर इवन जो है इक़्तिदार में जो गवर्नमेंट है वो कहती है, तो ये नहीं हो सकता, ये अप्रॉक्सीमेशन होती है। देखिए पाकिस्तान में तरीका क्या होता है, पहले आते हैं प्रोविजनल नंबर, फिर अगले साल आते हैं रिवाइज, उससे अगले साल आते हैं एक्चुअल। तो देखिए 3 साल का अरसा लगता है, ये नहीं लगना चाहिए। और हमारे पास क्वार्टरली जीडीपी भी नहीं होती, क्वार्टरली नंबर्स भी नहीं आते हमारे पास। तो ये बड़ा फुकदान है, इसका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसको हल करना चाहिए ताकि आपका पॉलिसी इनपुट ठीक हो। तो मैं इसको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहता हूँ, ये नहीं कहता कि जी इस गवर्नमेंट ने ये कर दिया या पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया। हाँ ये हो सकता है एक लास्ट पॉइंट कि जो पिछली ग्रोथ थी कोविड की, वो मुझे लगता है 0.5 नहीं होगी, हमारी ग्रोथ गिरी ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं न्यूजीलैंड की एग्जांपल देता हूँ। न्यूजीलैंड एक वाहिद मुल्क था जो जिसने सबसे पहले कोविड को कंटेन किया, सबसे पहला था ना, लेकिन उसकी ग्रोथ भी 3% गिर गई। जब वो कोविड को कंट्रोल करके सबसे पहले गिर सकती तो हम कौन है? तो मुझे लगता है कि हमारे जो डिक्लाइन है वो ज्यादा हुआ होगा, जो ये मोमेंटम है ये ऑफ कोर्स नजर आता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जनाब 3 साल में एक्चुअल नंबर्स आते हैं, और जब तक एक्चुअल नंबर्स आते हैं तो उस वक्त तक वजीर खजाना कौन होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। जी आपने बात बिल्कुल सही की, हुकूमत को तकरीबन 3 साल हो गए, और 3 साल में हमारे कितने वजीर खजाना आ चुके हैं? 4 वजीर खजाना आ चुके हैं। अब ये जो हमारे चौथे वजीर खजाना हैं जनाब, उनकी सरबराही में हमारा नया माली साल जो बजट है वो आने वाला है। लोगों की बजट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं जहाँ पर चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं, वो अभी जैसे हम ग्रीन पिक्चर के वाले से बात कर रहे थे, फॉरेन रेमिटेंस जो है उसमें इजाफा हो रहा है, स्टॉक मार्केट हमारी मुस्तहकम है, ये जो भी बॉन्ड्स के इजरा किए जा रहे हैं उसकी वजह से, लिक्विडिटी की वजह से उसका वहाँ पे एतमाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनको बजट में लोगों को रिलीफ मिल जाए। जी जनाब, और लोग क्या कह रहे हैं, उनके ख्यालात हैं बजट के हवाले से, आपको ज़रा दिखाते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, और अगर हम पिछले बजट की बात करें तो उसमें भी काफ़ी आवाम के हवाले से कोई भी इस तरह का रिलीफ पैकेज एक्सपेक्टेड ना था, ना भी है भी सही। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अगला साल तरक्की के लिए अच्छा होगा। महंगाई का प्रेशर ज़रूर जारी रहेगा, लेकिन ख़र्चा काफ़ी, मेरे ख्याल में बजट जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। जो पॉलिसियाँ हैं गवर्नमेंट की, उससे तो मुझे नहीं लगता कि बजट में रिलीफ हो। मेरे ख्याल से कम तनख्वाह बढ़ाना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। इंशाल्लाह इस बार बजट अच्छा होगा। गरीब आदमियों के लिए सरकार को सोचना चाहिए, हुकूमत को, हम जैसे रेडी चलाने वालों के लिए। अभी इतना महंगाई किया है कि खाने पीने के लिए भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कोई लगता नहीं है कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा, बस वही दावे हैं जो चल रहे हैं। आगे भी इंशाल्लाह 1 साल 2 साल इसी तरह यही दावों में टाइम इनका ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, तो दावों में टाइम नहीं गुजरना चाहिए, ताकि लोगों के चेहरे पे जो मायूसी है, अब वो बजट को सीरियस ही नहीं ले रहे, तो उनको सीरियस लेना होगा और उनके चेहरे पे खुशियाँ आनी चाहिए। बिल्कुल जी, यहाँ पर हम ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, हम यहीं पे मौजूद हैं।